Indian Institute of Integrative Medicine, previously named as Regional Research Laboratory. Founder of this laboratory was Colonel R.N. Chopra, who hailed from Jammu, and he laid the foundation of Drug Research Laboratory. Later, it was named as Regional Research Laboratory, and then present name is Indian Institute of Integrative Medicine. The garden is known for the conservatory of medicinal plants, and one of the unique medicinal plant which is before us is from the Gingiberales order. Earlier it was in the ginger family, Gingiberaceae, but presently this plant stands segregated from Gingiberaceae to its own family, Costaceae. So genus is Costus. If we just visit the inside Shivaliks in the wilderness of Jammu Hills, Jindra, Ramnagar, Ghordi, Sundarbani, we will find another Costus which has white flowers, which is known as Costus speciosus. But present name stands changed as Chilocostus speciosus, that is spiral ginger. But here also the leaves are arranged in a spiral fashion. So if you look, the leaves are arranged spirally. So this is also a kind of spiral ginger, as is the Costus speciosus, now called as Chilocostus speciosus. But this is still retained under the genus Costus, and this is unique in having the red spotted or red striped yellow flowers, and this unique feature has earned it the name as painted spiral ginger. So this plant is basically painted spiral ginger, having the flower. This is unique wild crop relative, or rather fruit relative of cherry, which is known as a wild Himalayan cherry or sour cherry, botanically identified as Prunus cerassoides. And this 3-meter tall plant was planted during Tree Talk anniversary in the year 2018. That was 8th Tree Talk Foundation Day, when the director, Indian Institute of Integrative Medicine, Ram Vishwakarma, along with other participants, planted this sapling, and this sapling was gifted by Professor Romesh Atre, who is head of the department in Government Degree College Boys, Udhampur. It was his unique. This plant is also known for the ringed bark. So bark is a ringed. So this is a ringed bark, and here its fruits are edible. Stipules are lacerated, they are lobed, and it has the red fruit which is eaten. The bud is aromatic, durable. Leaves and bark are used for the preparation of the green dye. And this particular Himalayan cherry grows above 12,000, this is 1200 feet in the Himalayas. But this stands adapted, stands cultivated in the Indian Institute of Integrative Medicine, thanks to Romesh Atre. So now this particular plant has the very unique appearance. It flowers during autumn season around Diwali time, when mostly flowers are flowering is in the spring season, but this particular tree flowers during autumn. That is unique, and its seeds are made into the rosaries, mala, and its fruits are also eaten, and wood is sacred and used in many havans, yagya havans. Prunus cerassoides, locally named as Bataran in Dogri because of this ringed bark. This particular, हम अंग्रेजों की गुलामी में थे, तो करीब करीब
हमारे जितने वैज्ञानिक होते थे विदेश में जाके पढ़ते थे। यहाँ पर लोग बहुत कम लोग काम कर पाते थे। रॉकेट बॉयज़ वगैरह कुछ आजकल कोई सीरीज़ आप लोगों ने देखी होंगी, तो भाभा या हमारे जितने भी साइंटिस्ट थे, तो जो साइंटिस्ट वापस आते थे उनको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक टाइम आएगा कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं। जब हम आज़ाद होंगे तो उसके बाद हमें तो सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, सुई भी बाहर से आती है, हम लोग सिर्फ एज ए मजदूरी यहाँ पर काम करते हैं। तो उसको उन्होंने माइंड में रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या इदारे कहे जाते हैं देश में जो बनाए गए, कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी साइंटिफिक, जिसको CSIR कहा जाता है। CSIR का काम क्या था कि इंडस्ट्री को इंडिया में लाके इस्टेब्लिश करना और उसको धीरे धीरे आगे इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट बनाना, जिसमें बहुत बड़ा योगदान CSIR का रहा। ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, इसको बनाने वाले जिनका नाम सर ने बताया, कर्नल सर रामनाथ चोपड़ा। तो सर की उपाधि उनको अंग्रेजों ने एज ए नाइटहुड दिया उनको, और क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे, उन्होंने अफ्रीका में और अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जब ब्रिटिश आर्मी की लड़ाई होती थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, उन्होंने वहाँ पर शिरकत की एज ए डॉक्टर, क्योंकि वो फार्माकोलॉजिस्ट थे। और उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ जुड़ी हुई है कि उनको फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कहा जाता है। इंडिया में जितनी भी मॉडर्न लाइन्स पे रिसर्च होती है उनके टाइम से शुरू हुई। जिस समय कुछ नहीं होता था उस समय उन्होंने माइस पे, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करके ये रिसर्च शुरू करी। और बड़ी बात यह है कि वो जम्मू के थे। जब वो 1941 में उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई, दिल्ली में उनका एक बड़ा प्रोग्राम किया गया। उस समय ये डिसाइड किया कि 1941 में कि एक हम ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में बनाएंगे, और उसका नाम उन्होंने रखा ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी। तो ये DRL होता था, आपकी भी शायद जो बिल्डिंग है इसी का एक पार्ट होती थी उस जमाने में, जब 1941 में ओरिजिनल DRL उस तरफ होता था, इस तरफ बाद में ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, उस ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी को पुलवामा में, कश्मीर में अलग अलग फार्म्स होते थे, दवाइयाँ बनती थी, ब्रिटिश आर्मी को जाती थी। फिर उसको डेवलप करके 1957 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इसको टेकअप कर लिया और इसका नाम बदल के रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी RRL रखा। तो जम्मू के मैक्सिमम लोग आज भी इसको RRL के नाम से जानते हैं। किसी ने बोलना है तो लेबोरेटरी जाना है, IIIM के नाम से कोई नहीं जानता आपको यहाँ भी आने के लिए। उसके बाद 2008 में इसका नाम बदल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका एक मैंडेट रिवाइज किया गया। पहले अलग अलग फील्ड में काम करते थे, आप किस पे काम करने लगे? ड्रग डिस्कवरी पे, दवाई बनाने पे। CSIR की 38 लेबोरेटरी पूरे देश में अलग अलग फील्ड में काम करती है। कोई स्पेस रिसर्च पे काम करती है, कोई आपकी बॉटनी में काम करती है, केमिस्ट्री में काम करती है, ओशंस पे काम करती है। ये जो पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो बना, ये काम करता था इंटीग्रेटिव मेडिसिन, मतलब जो हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, जो हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन घर में जैसे अजवाइन हम खा लेते हैं पेट दर्द के लिए, अलग अलग दवाइयाँ देते हैं ना, लेकिन उसमें साइंस है। लेकिन जब हम जाएंगे विदेश में या किसी को बोलेंगे कि इसको खाने से आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, वो थोड़ी मानेगा। वो कहेगा ये क्या, ये ऐसे ही अंधविश्वास है, कुछ भी बोलते हैं। तो हमारी जो ट्रेडिशनल साइंस थी आयुर्वेद की, जिनकी दवाइयों को हम लेते हैं, उनमें सब कुछ है, सारे बायोमोलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिससे हमारी अलग अलग बीमारियाँ ठीक होती है। लेकिन उसको मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स पे, ताकि एक एलोपैथिक डॉक्टर भी उसको कल को आगे दे सके, दुनिया में आगे जा सके, उसको हम एक इंटीग्रेट कर रहे थे। उसको मैंडेट को लेके इंटीग्रेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट बना। तो हमारा मेजर काम क्या होता है? ये ड्रग डिस्कवरी, ये जो बॉटनी का आप सेक्शन देख रहे हैं, पहला पार्ट है। क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूट में और एक ऐसी स्टेट में हैं, J&K या लद्दाख ऐसा एरिया था कि जहाँ पर बहुत बायो रिसोर्सेज थे। 300 मीटर से लेके 8000 मीटर, 7000 मीटर तक की हाइट मिलती है। हर किस्म का एनवायरनमेंट मिलता है और प्रजातियाँ पौधों की मिलती हैं। खासतौर पे वो रेयर प्रजाति हैं जिनसे दवाइयाँ बनती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया। उसके बाद जब इसमें धीरे धीरे आगे ग्रोथ होती है, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया, पूरी दुनिया को जानती है आपके लोगों को, फिर यहाँ पर आई जानकी और फ्रॉम केरला। उनको क्रोमोसोम लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रोमोसोम्स पे रिसर्च करी। देखिए, क्रोमोसोम लेडी ऑफ इंडिया। और शी वाज फर्स्ट वुमेन PhD फ्रॉम इंडिया, होल इंडिया फर्स्ट वुमेन PhD। और उन्होंने जो पहली मेडिसिन वर्ल्ड में, जिसको फाइटोफार्मा ड्रग कहते हैं, आयुर्वेदिक जो ड्रग होती है ना, बेसिकली हमारा जो स्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है ना कि जैसे बनाना है, 10 ग्राम ये, 2 ग्राम वो, 4 ग्राम ये, मिक्स करके जो बनेगा वो हमारी आयुर्वेदिक ड्रग है। उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन प्लांट का जब हम एक्सट्रैक्ट निकाल देते हैं ना, इसको कूट के सॉल्वेंट में निकाल के, वो ड्रग मार्केट में नहीं जा सकती। तो ये पहली ड्रग पूरे वर्ल्ड में डेंगू की फाइनल स्टेज पे है, सन फार्मा के साथ ही मार्केट में जा रही है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है यहाँ की कि डेंगू के लिए मार्केट में ड्रग है। पॉपुलस हिरसुटस कहते हैं। वो छोड़ो, पाताल गरुड़ी, आयुर्वेदिक नाम है पाताल गरुड़ी। गरुड़ होता है ना, गरुड़, पाताल, वहाँ पर इसको कहते हैं जल जमनी। जल जमनी भी दूसरा नाम है। इसका भी बताइए इनको। आप ही बताइए।
ये डोगरे आखदे इस बूटे की खड़मल्ली या कड़मल्ली या मल्ली, लेकिन उर्दू में इसको बोलते हैं नाजपोश, और कश्मीरी लोग बोलते हैं बबरी ब्योल। एक किस्म की तुलसी है, इसको बोलते हैं स्वीट बेसिल। और इसके जो दाने हैं काले रंग के होते हैं। जो निर्जला काशी या मई महीने में बहुत गर्मी होती है, चिलचिलाती धूप, तो निर्जला काशी के वक्त में मोस्टली हम इसी का शरबत बनाया करते थे। तो इसके पत्तों का रस अगर आंखों में कुछ पड़ जाए, इसका एक रस लेके आंखों में डालते थे, तो आंखें कंजक्टिवाइटिस हो, आंखें आई हों, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसको बोलते हैं आसिमम बेसिलिकम, स्वीट बेसिल, नाजपोश, बबरी ब्योल, और दूसरा नाम डोगरी के बताए मल्ली, खड़मल्ली या कड़मल्ली, ये इसके नाम है। तो ये आपका पहले हमने बता दिया, ये वाला सर्पगंधा। सर्पगंधा भी दो हैं। ये जो है रेसरपिन ड्रग, और रूट बिल्कुल स्नेक की तरह, इसलिए इसका स्पीशीज का नाम ही सरपेंटिना। और आपको पीछे भी दिख रहे हैं कुछ पौधे, उधर हम जा सकते हैं अगर आपके पास हिम्मत हो। तो ये है आपका स्टीविया रिवार्डियाना, और देखो इसके सफेद फूल होते हैं, जो फूल इधर आए हुए, ध्यान से देखोगे, और इतना मीठा पत्ता है ना ये स्टीविया रिवार्डियाना। मीठा लगा कि नहीं? और इसको जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं, और चाय में भी डाल सकते हो। एक हम भी इसका टेस्ट करेंगे, और एक मैडम के लिए ले जाओ। मैडम इधर हैं या उधर हैं? एक पत्ता मैडम को दे दो। स्टीविया रिवार्डियाना बहुत टेस्टी है। और उधर हमने क्या बोला पीछे, अकरकरा, ये वाला, ये अकरकरा है, टूथ एग प्लांट। वी आर वेरी थैंकफुल और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम दोबारा यहाँ पे आएं। And we will get some rare trees for our herbal strip from this institute, so that वहाँ पे भी हम थोड़ा सा उसको develop करें. And we will remember always कि once we visited RRL and from there we got this fascination and we got so much interested in all these plants that we have started this. We have established a little herbal strip in our institution also, so that students can take interest in all these things. तो Conserve the plants and पूरी दुनिया में कितने किस्म के दरख्त हैं, ट्री टाइप्स, जड़ी बूटी छोड़ो, सिर्फ ट्रीज। तो उसमें भी एस्टीमेट जो है, रफ एस्टीमेट जो भी दिया है ग्लोबली, 60,000 ट्री स्पीशीज ओनली, इससे ज़्यादा नहीं है, 60,000। लेकिन सिर्फ इंडिया में कितनी है? इंडिया में 250 और 3000 के बीच में बताई जाती हैं, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको कोई कहता है कभी ट्री बन जाता है, नहीं तो लार्ज श्रब हो जाता है, जैसे ये बना है। अब बनेगा, अब ट्री भी कुछ लोग इंक्लूड कर देते हैं, कुछ लार्ज श्रब भी कहते हैं। तो इसलिए 250-3000 के कम ही है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, जम्मू कश्मीर में कितने दरख्त हैं? कुछ तो इंट्रोड्यूस्ड है जैसे गार्डन, और कुछ जंगली। तो टोटल जो है हार्डली 300 ट्रीज़ हमारे JNK में। और आपको कितने जीवन में आते हैं? अगर आज आपको 50 आते हैं तो कोशिश करिए कि जब 10 साल के बाद ये 50 का नंबर कम से कम 150 तो हो जाए। तो इस तरह से कोई भी लर्निंग है तभी होगी व्हेन इट इज़ क्लोजर टू योर हार्ट। और एक बात जो सुमित गैरोला जी खास, इन्होंने, इनसे ही मैंने पहले सुनी थी कि ट्री या प्लांट ब्लाइंडनेस है, तो उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। बेसिकली क्या है कि जो एक बच्चा आज की डेट में पैदा होता है, वो कहीं पर भी जितने भी 200-150 ब्रांड्स होते हैं ना, उनके लोगो देख के उसको पहचान सकते हैं कि ये रीबॉक है, एडिडास है, एप्पल है, ये सब चीज़ें पहचान सकते हैं ना। क्यों? उसकी वजह क्या है? जो गांव में रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पता है, जंगल में रहते हैं, वो आसपास के पौधे और पेड़ पहचान सकते हैं। वो बता सकते हैं प्रिंका है, ये पर्टिकुलर पेड़ है, ये इस काम आता है, ये पेट दर्द की दवाई आती है। क्यों? क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है। और जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं उनकी क्या डिपेंडेंसी है? हमें मोबाइल है, टीवी है, जूते हैं, शर्ट है, तो हम ये चीज़ें बड़ी आराम से पहचान सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है कि जैसे एक आम आदमी जा रहा है आसपास में, उसको पेड़ तो दिख रहे हैं, चारों तरफ पेड़ हैं, पौधे हैं, लेकिन उसको तो नहीं पहचानता ये पेड़ है। अभी ज़्यादातर को सर ने बताया, लेकिन अभी भी याद नहीं होगा इस पेड़ का नाम क्या है। इसका 2 पौधों का, 3 पौधों का आपको नाम पता होगा। तो इसको टर्म कही जाती है ट्री ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस क्या है कि हम जा रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं पता, ये ब्लाइंड है हम उसके प्रति, तो उसको ट्री ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो सर का जो एक ट्री टॉक का एक मिशन रहा है, ट्री टॉक में लोगों को बताते हैं, तो ही इज़ लाइक अ
सर्जन हु क्योर ट्री ब्लाइंडनेस। वेरी गुड, आप लोगों की जो ताली बजाइए। थैंक यू। उसको क्योर करने के लिए एक डॉक्टर हैं जो ये ट्री टॉक आपके लिए करते हैं या आप लोगों को बताते हैं। तो ये कम से कम एक इंसान को, चाहे शहर में रहे या कहीं भी रहे, कम से कम 50 पेड़ या 50 पौधों के नाम तो हमेशा पता होने चाहिए। या कभी पूजा होती है तो कोई बोलता है दूब घास ले आओ, कोई पंडित जी आगे, कोई बोलता है वो ले आओ, तो बच्चे पूछते रहते वो होता क्या है, कौन सी चीज़ है। आम का पेड़ है तो पहले 4 पत्ते ऐसे भी देखते हैं आम ही है कि कुछ और है ये। तो उतने कम से कम इतने पौधे पता हो कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए, चाहे जंगल चले जाएँ या कहीं चले जाएँ, हमें पता हो। तो वो एक ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। और सर इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने प्रोग्राम आज किया, सबके साथ अच्छा इंटरेक्शन रहा। और एज ए बॉटनिस्ट आपके साथ जब घूमते तो और चीज़ें सीखने को मिलती हैं और रिवाइज होती रहती है। तो एक वो ट्रिप अच्छा तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो आपके साथ हम लोग सीखते हैं तो इस ट्रिप का मजा दुगना हो जाता है। ताली बजा दो फिर। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बीच में कोरोना आया तो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे स्किप हो गए हमारे जो बहुत अच्छे प्लान थे। उससे पहले हमने 1000 ट्री टॉक एनिवर्सरी 1-2 बार मैंने प्रोग्राम किया था, इन्होंने कहा यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव है, प्लीज मत हर आइए। बार कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन अभी भी होंगे, लेकिन अब कोई पूछ नहीं रहा। और कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन सबसे